Hello, hello. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. We will now participate in the Union of Secretary, Text and Environment of India. I will request Shri Rajendra Kumar, Economic Advisor, Ministry of Textiles, Government of India, to kindly do the honors. Thank you. May I now request you, sir, to kindly felicitate Shri Rohit Kansal, Additional Secretary, Ministry of Textiles. Thank you. We will now felicitate Shri Rajendra Kumar, Economic Advisor, Ministry of Textiles, Government of India. I'd request Shri Rohit Kansal, Additional Secretary, Ministry of Textiles, to kindly do the honors. उसमें पूरी ताकत से जुट जाने के लिए एक संवाद का रास्ता खोलता है. The active participation of states and UTs is central to the success of our policies. All of you are aware the textile and apparel sector की महत्ता केवल इस बात में नहीं है कि ये इकोनॉमी के कितने परसेंट में जो योगदान है वो देता है, कि ये 11% मैन्युफैक्चरिंग का योगदान देता है, या ये लगभग $180 बिलियन की हमारी इंडस्ट्री साइज है जो निरंतर बढ़ रही है और ग्रोथ दिखा रही है. यह इस बात का महत्व को प्रतिपादित करता है कि कृषि के बाद पूरे देश में यदि रोजगार का कोई साधन है तो टेक्सटाइल, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का सेक्टर मिलकर के दिखाता है. यहाँ लगभग 4.5 करोड़ से अधिक लोग टेक्सटाइल्स के कामकाज में जुटे हैं और लगभग इससे कहीं ज्यादा लगभग 6 करोड़ से अधिक लोग इनडायरेक्टली इसमें अपनी ओर से इन्वेस्टेड हैं, कामकाज को सपोर्ट करने के लिए जुड़े हुए हैं. ये एक तरीके से शुरुआती उत्पादन से लेकर के आखिरी श्रृंखला, मूल्य श्रृंखला तक की पूरी इंडस्ट्री एक बड़ी वैल्यू चेन की बात भी दिखाता है. और शायद इसलिए यह राष्ट्रीय सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज जब हम टेक्सटाइल की बात करते हैं तो हम टेक्नोलॉजी और विकास के साथ साथ रोजगार की भी बात करें इस दौरान में. As one of the largest contributors to the employment, exports and regional development, textiles continue to occupy a unique place in our economic and social fabric, and it moves on to the cultural and our heritage livelihoods, and therefore becomes equally important that we invest ourselves in global competitiveness. Under the leadership of the Honorable Prime Minister, the government has articulated a clear vision to build a $350 billion textile economy with $100 billion in exports by 2030. To do so, हम लोगों को आज जब हम लोग अपने पूरे बैठक में 1.5 दिन के लिए विचार विमर्श करेंगे तो हम लोग जानेंगे कि ये विजन को सच्चाई में तब्दील करने के लिए किस तरीके के सहयोग और किस तरीके के आयाम हैं जो राज्यों को लेने होंगे. जैसे कि हमको फाइबर लगभग आज 15 मिलियन मीट्रिक टन से ले जाकर के 23 मिलियन मीट्रिक टन करना होगा. हमारे को रोजगार जो फॉर्मल क्षेत्र में है वो 4.5 करोड़ से बढ़ा करके कैसे हम 6.5 करोड़ तक पहुंचेंगे.
Our approach is firmly anchored in cooperative federalism, where the center provides the support, national platforms, and also financial support, while the states leverage their comparative advantages, whether in cotton, silk, man-made fibers, handloom, handicrafts, apparel manufacturing, and now the new age fibers, which some of you would have witnessed today. From Gujarat and Maharashtra's industrial strength, Tamil Nadu's apparel ecosystem, Uttar Pradesh's strong handicrafts, to the Northeast's unique silk and handloom heritage, every state has a distinct and indispensable role in India's textile future. It gives me immense pleasure to inform that more than 500 districts of this country, लगभग 500 से अधिक जो हमारे जिले हैं, वो टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हुई वस्तुओं को विश्व के अलग अलग कोने में एक्सपोर्ट करते हैं. I am confident that this penetration is going to get only deeper, and deliberations during this conference will lead to concrete and actionable outcomes. हम लोग 1.5 दिन में देखेंगे पहले क्षेत्र में कि किस प्रकार से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को मजबूत कर सकते हैं. दूसरे सत्र में फाइबर को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं. तीसरे सत्र में टेक्सटाइल की जो इमर्जिंग भूमिका है, टेक्निकल टेक्सटाइल्स की और नए एज फाइबर्स की, उसमें प्रदेशों की ओर से क्या योगदान आ सकता है और क्या इंटरवेंशंस करने की आवश्यकता है. और चौथे परिदृश्य में हमारा जो ट्रेडिशनल सेक्टर है, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स, उसको हम कैसे अपने कल्चरल हेरिटेज के साथ जोड़े रखते हुए एक पूरा ताना बाना इकोनॉमिक्स और लाइवलीहुड का जोड़ सकते हैं. मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हमने इसके पीछे एक मजबूत इंफॉर्मेशन तंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया है. मुझे आप सभी लोगों को धन्यवाद भी देना है कि आप एक बड़ी संख्या में अपने दूर दूर इलाकों से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं. मैं पुनः आप सभी का स्वागत करना चाहती हूँ और मंचासीन अतिथियों का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए हम लोग आज पूरे दिन उत्सुक रहेंगे. और ये नेशनल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस भारत के वस्त्र विकास, विरासत और नवाचार का ताना बाना बुनते हुए इट विल कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन इंडियाज टेक्सटाइल्स वीविंग ग्रोथ, हेरिटेज एंड इनोवेशन. I welcome you all again for this National Textile Ministers Conference. Thank you. Thank you, ma'am. I now request Shri Rohit Kansal, Additional Secretary, Ministry of Textiles, to kindly deliver his presentation on Vision, Center-State Partnership for Positioning India as a Global Textiles Manufacturing Hub by developing a $100 industry and attaining $100 million in global textile exports by 2030. Honorable Minister for Textiles, Government of India. Honorable Chief Minister, Madhya Pradesh. Honorable Minister of Textiles, Government of Assam. Honorable Minister of State of Textiles and Textile Affairs, Government of India. Respected Secretary, Textiles, Government of India. Distinguished and honorable ministers from different states of the country. Colleagues from the Ministry of Textiles. I welcome you all to this first ever effort and जैसे कि Secretary Textiles just mentioned, it is also the largest employer, employing 4.5 crore people,
75% of them are women. Next. So what is important is that our textile sector has been growing at 6 to 7% from 8.5 lakh crores in 2014. We are now at 14 to 15 lakh crores. We have a very strong and vibrant domestic sector. Next. But we are also one of the largest exporters in the world. So whichever way you look at it, whether you look at the size of the textiles market, whether you look at the growth of the domestic sector, whether you look at number of people employed, whether you look at exports, in every possible parameter, India is one of the largest textile countries in the world. Domestic परिधान को देख लें, global exports को देख लें, employment को देख लें, output को देख लें, किसी भी पैरामीटर को देख लें. Next. बहुत सारे कंट्रीज हैं जो टेक्सटाइल्स में अच्छे हैं, बट व्हाट इज यूनिक अबाउट इंडिया इज दैट फार्म टू फैशन 5F, पांचों F में हम सक्षम हैं. वी आर गुड इन ऑल द 5Fs एंड आई एम वेरी हैप्पी टू स्टेट द ऑनरेबल मिनिस्टर्स फ्रॉम द स्टेट्स आर देयर. इस मैप से दिखाई देता है कि देश का कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां पे टेक्सटाइल्स का कोई ना कोई काम ना हो रहा हो. मैंने कुछ क्लस्टर्स के बारे में बताया है. 500 districts of the country are exporting one textile product or the other. Therefore, the entire country is involved in textiles in one way or the other. Next. So, as I said, we have strengths across the value chain. If you look at raw materials, we are the largest producer of all raw materials: cotton, MMF, jute, silk. If you look at fabric and yarn, India is the world's second largest producer of denim. If you look at manufacturing, in spinning, we are the world leaders. If you look at fashion, some of our institutions, such as NIFT, are among the top 10 institutions in the world. In exports, we are among the top 5 countries of the world, and so on and so forth. So there is no component of the value chain where we are not leading in one way or the other. Next. As I already mentioned, 30% of our manufacturing output and employment comes from textiles. 4.5 crore people are employed in textiles, which is the second largest employment after agriculture. More than 50% of them are women. So, from output point of view, from employment point of view, from exports point of view, textiles is an extremely important sector. 65 lakh handloom and handloom weavers and artisans exist throughout the country. वस्त्र मंत्रियों का सम्मेलन चल रहा है, सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे हैं. With our proximity to ASEAN markets and our logistical strength under the Act East policy, we are ready to contribute significantly to the goal of 350 billion textile industry investment. For the textile sector specifically, private players have shown interest to invest rupees 420 crore. The Textile and Apparel Policy of Assam 2025 has set out a competitive fiscal framework. Let us wait a future where the textile industry can contribute even more towards a Viksit Bharat. मैं असम का मंत्री होने के नाते आप सबको फिर से स्वागत करता हूं. आशा करता हूं कल तक होने वाला एक जो सेमिनार है और कॉन्फ्रेंस है टेक्सटाइल मिनिस्टर्स का, इसी से एक नतीजा निकल कर आएगा जिसके द्वारा भारत में टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव आएगा. धन्यवाद. Thank you, sir. Ladies and gentlemen, we are privileged to present the India's Textile Atlas State Compendium 2025, a comprehensive, granular and data-driven report prepared by the Ministry of Textiles to enable policymakers effectively align state-level textile ecosystems with national flagship initiatives like PM Mitra Parks, the PLI scheme and the National Technical Textiles Mission. And now, may I request the Honorable Minister of Textiles, Shri Giriraj Singh, to kindly officially release the India's Textile Atlas State Compendium 2025.
would request other dignitaries on the dais to kindly join him. Ladies and gentlemen, please join me for a round of applause as we unveil this report. Thank you. I request our dignitaries to kindly take their seats. I would now request Shri Pobitra Margarita, Honorable Minister of State of External Affairs and Textiles, Government of India, to kindly share his valuable thoughts with this distinguished gathering. Namaskar. Honorable Union Minister of Textiles, Sri Giriraj Singh Ji, Honorable Chief Minister Madhya Pradesh, Sri Mohan Yadav Ji, Minister of Textiles, Handloom and Textiles, Government of Assam, Sri Urkhao Gaurav Brahma Ji, my colleagues in the Ministry, Secretary, Minister of Textiles, Government of India, Srimati Neelam Shami Rao Ji, Additional Secretary, Minister of Textiles, Sri Rohit Kansal Ji, Economic Advisor, Minister of Textiles, Government of India, Sri Rajendra Kumar Ji, and Honorable Ministers from different states of India, namely Ganesh Joshi Ji, Minister of Uttarakhand, Myato Lukam, Minister of Arunachal Pradesh, Bikas Sharma Ji, Minister of Tripura, Salhotno Kursi, Minister of Nagaland, Pradeep Pal Samanji, Minister Odisha, Bikas Debarma Ji, Minister Tripura, Balwant Singh Rajput Ji, Minister Gujarat, Subhas Phal Desai, Minister of Goa, Sanjay Saukare, Minister of Maharashtra, Gajendra Yadav Ji, Minister from Chhattisgarh. I think I have not missed any name. All the honorable ministers from different states, senior officers of the Ministry of Textiles, representatives of state governments and union territories, esteemed members of the media, distinguished guests, ladies and gentlemen, namaskar. As a son of this soil, it's a moment of deep personal pride for me to welcome you to the auspicious land of Ma Kamakya and Mahapurush Srimanta Sankardev. It gives me immense pleasure to be a part of this historic occasion where, for the first time, textile ministers and policymakers from across the country have come together on a single platform to collectively shape the future of this vital sector of textiles. It's not a ceremonial gathering, but a forward-looking initiative where the center and the states have come together to deliver it, to align, and to chart a shared national roadmap for the textile sector. Friends, we are meeting at a defining moment for the textile sector. We are seeing a convergence of multiple trends with greater emphasis on innovation and new applications. Growing consciousness around sustainability and circularity and a renewed respect for tradition. राष्ट्रीय वस्त्र मंत्री सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। लाइव प्रसारण गुवाहाटी से। नेशनल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में मंच पर विराजमान हम सबके सुपरिचित माननीय मंत्री श्रीमान गिरिराज सिंह जी, अभी जिनने अपना विचार बहुत अच्छे से साझा किया, माननीय मंत्री पवित्र मार्गारेट जी, माननीय ब्रह्मा जी, मैडम समी, रोहित कंसल जी, राजेंद्र कुमार जी, इस अवसर पर देश भर के हर राज्य के कमोबेश सभी माननीय मंत्रीगण, सम्मानीय महानुभाव,
मां कामाख्या की इस धरती पर असम से यशस्वी प्रधानमंत्री का एक बार फिर हम सब संकल्प लेके जा रहे हैं कि हम अपने राज्य की सरकारों के माध्यम से न केवल राज्यों को सशक्त करें बल्कि रोजगार परक कामों के माध्यम से उनका जीवन भी धन्य करें और दुनिया में भारत का नाम गौरवान्वित करें। मेरी अपनी ओर से खासकर औद्योगिक सहयोग और निवेश की दृष्टि से ये जो माननीय भारत सरकार के द्वारा आयोजित इस आयोजन में माननीय मंत्री जी का सभी अधिकारियों का जो मार्गदर्शन होने वाला है, सच में मैं अपनी ओर से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका आभार मानता हूं, धन्यवाद देता हूं। जब मैं धन्यवाद दे रहा हूं तो दिल से ही देना चाहिए, ऐसे ताली बजा करके माननीय हमारे कितने प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं सारे कामों को लेकर के और अच्छा भी लग रहा है। धीरे धीरे करके भारत का वस्त्र उद्योग हमारे विकास में विरासत से विकास की ओर बढ़ते कदम के आज अभी प्रातःकाल थोड़ी देर पहले जब हमने अपनी प्रदर्शनियों का अवलोकन किया और हर स्टॉल से कमोवेश एक से बढ़कर एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में अपने प्रोडक्शन का प्रदर्शन भी किया और हमारे अपने हुनर के बलबूते पर हजारों लाखों साल पुरानी भारतीय वस्त्र परंपरा के आधार पर वस्त्र उद्योग को बढ़ाने के लिए कितने प्रकार से यत्न प्रयत्न चल रहे हैं, उसका अवलोकन भी हो रहा है, उसका एहसास भी हो रहा है। कितना अच्छा लगता है बैठा हुआ एक कलाकार बांस के कच्चे बांस से वो अपने हाथों में ऐसा लग रहा है कि परमात्मा ने स्वयं उसको एक ऐसा आशीर्वाद दिया है कि वो अपने इस कला से बनाते बनाते किस प्रकार के गौरवशाली अतीत से भी परिचय करा रहा है। और माननीय मार्गरेटा जी ने तो कहा कि इतनी सुंदर कलाकृति और इतनी सस्ती बेच रहा है, कैसा लग रहा है कि वाकई वो कला की कीमत नहीं है, वो वास्तव में उसके हुनर का सम्मान है। अलग अलग प्रकार से सारे लोगों को जुटाते हुए मैं तो अपने आप को धन्य मानूंगा। मैं जब स्वयं इस नेशनल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में जब आने की बात आई तो हमारे लिए राज्य की दृष्टि से मेरे अपने मिनिस्टर ने कहा कि सर मैं जाने वाला हूं, पर हमने कहा अभी हमारा दूसरा SIR का भी काम चल रहा, तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप तो यहीं रहो, मैं जाता हूं, क्योंकि इस काम की महत्ता ही ऐसी है। हमारी सरकार के गठन के बाद रोजगार परक कामों को लेकर के हमने सबसे टॉप प्रायोरिटी में अगर किसी क्षेत्र को रखा है तो मुझे खुशी है कि हमारे इस इंडस्ट्री को हमने सबसे टॉप प्रायोरिटी में रखा है, जिसके आधार पर कई सारे प्रकार से हम काम कर रहे हैं। अभी अभी माननीय मैडम समीन से लगाकर सभी लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो 7 PM मित्र पार्क की बात कही थी, सच में हमने अपने सभी प्रकार के कामों में सबकी प्राधान्यता रखी है, लेकिन इसको सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। इसी आधार पर जब इस साल का जन्मदिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मनाने का निर्णय लिया है तो हमने कहा उनका जन्मदिन 75वां जन्मोत्सव कहाँ मनना चाहिए, कैसे मनना चाहिए, तो हमने कहा उनका संकल्प था कि 7 PM मित्र पार्क बनना चाहिए। उसमें सबसे बड़ा मध्य प्रदेश को अगर मिला है तो हमने उसका भूमि पूजन कराते हुए उनका न केवल जन्म दिवस मनवाया बल्कि इस संकल्प के साथ कि ये हमारा एक PM मित्र पार्क केवल अधोसंरचना का बड़ा केंद्र नहीं बनेगा, साथ ही साथ समान रूप से कमोबेश उसके सारे भूखंडों का निवर्तन करते हुए एक साथ इधर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, उधर इंडस्ट्रियां तैयार होगी, दोनों का एक साथ लोकार्पण करेंगे तो सच्चे अर्थों में ये हमारी अपने उस संकल्प की पूर्ति भी करेगा, जिसके भरोसे से हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत को सशक्त बनाते हुए लगातार एक के बाद एक नया अचीवमेंट करते हुए भारत को तीसरी शक्ति की तरफ ले जा रहे हैं। जब हम अपने इस दौर से देखते हैं तो संस्कृति, संस्कार और संसाधनों से मध्य प्रदेश को विरासत मिले टेक्सटाइल और गारमेंट्स में हम कई सदियों से आगे रहे, लेकिन आज का दौर तो और अद्भुत है। हमने बहुत सारे प्रकार से अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने का प्रयास किया है। लगातार कोई महीना ऐसा नहीं जा रहा जब हम अपने राज्य के अंदर छोटे छोटे संभाग और जिलों तक भी हमारी इसी प्रकार की बात को प्रेरित कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि राज्य के अंदर अब लगातार एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। इसीलिए चाहे उज्जैन हो या ग्वालियर, भोपाल हो या इंदौर, जबलपुर हो या हमारा रीवा का क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में समान रूप से
और इसी कारण से हमारी तो वैसे परंपरा हमारी अहिल्या माता के समय से है, जब माहेश्वरी साड़ी, चंदेरी साड़ी, सब प्रकार के सिल्क को बढ़ावा देने के लिए लगातार पहले से काम होता था, लेकिन बीच के काम में थोड़ा गैप हुआ है। लेकिन आज दोबारा हम अपनी तरफ से जब आगे बढ़ रहे हैं तो नर्मदापुरम का हमारा हाई क्वालिटी रेशम, यहाँ 4 प्रकार के रेशम जैसे टसर, मलबरी रेशम, इरी, मूंगा, सभी क्षेत्रों में हम लगातार काम कर रहे हैं। और इसी आधार पर जब आगे बढ़कर देखते हैं तो आज मध्य प्रदेश में 60 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स, 4000 से अधिक लूम, 25 लाख से अधिक स्पिंडल्स और अलग 10,000 से ज्यादा महिलाओं को हैंडलूम के माध्यम से हमने जोड़ा है। इसी प्रकार से विशेष रेडीमेड गारमेंट्स पॉलिसी, मध्य प्रदेश ऑर्गेनिक कॉटन, मैन मेड फाइबर, टेक्निकल टेक्सटाइल में तेजी से आगे बढ़ रहा है। खरगोन, बुधनी, लगातार हमारे कई आदिवासी अंचल में भी हमने इसका जोर दिया है और पिछले 1.5 दशक के माध्यम से टेक्सटाइल की संपूर्ण वैल्यू चेन में हमने 25,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश कराते हुए कई प्रकार से लगभग लाखों लोगों को रोजगार दिलाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। आज तो सच में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, केवल सुनना चाहता हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आज के इस खासकर हमारे अपने लिए मां कामाख्या का आशीर्वाद लेकर के हमारा ये पूरा वर्ष 2026 एक नई उड़ान के लिए तैयार रहेगा। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हमारा ये इस अवसर पर केवल 2 जरूर आश्वासन भी देना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि एक अपना जब अभी जुलाई के दरमियान आपका यहाँ मेला लगने वाला है टेक्सटाइल इंटरनेशनल लेवल का, तो मध्य प्रदेश उसका पार्टनर बनने के लिए तैयार रहेगा, ये मैं आपको आश्वासन देना चाहूंगा। और इसी के साथ साथ आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर भी एक छोटा हमारा इसी प्रकार का हमारे राज्य की दृष्टि से भी आपका एक या मैं मान के चलता हूं कि अगला वस्त्र मंत्रियों का ये जो सम्मेलन आप कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में आपको आमंत्रित करता हूं। मध्य प्रदेश में आप अगली बार आए, बाबा महाकाल के दर्शन करें। महाकाल के अंदर आपने उज्जैन में पुराना हमारा बहुत अच्छा वस्त्र विन्यास का ये पुराना ट्रेंड रहा है, तो मैं एक बार फिर बाबा महाकाल के धरती के लिए आपको आमंत्रण देते मेरी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। अब मैं भारत सरकार के माननीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया अपने बहुमूल्य उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। ये टेक्सटाइल चिंतन मंथन सम्मेलन के रूप में हम रखे हैं और मेरा सौभाग्य है कि आज इस कार्यक्रम में अधिसंख्यक राज्यों के मुख्यमंत्री तो ये हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, मेरी इच्छा भी थी कि पीएम मित्रा पार्क में जिस तेजी से वो वहां काम कर रहे हैं तो उनकी उपस्थिति ने आज के 2 दिनों के सेशन में 4 चांद लगाया। इसके लिए मैं मोहन यादव जी को कोटि से धन्यवाद देता हूं। हमारे छोटे भाई और इसी धरती के लाल भाई पवित्रा मार्गेट्रा जी पहचान के मोहताज नहीं हैं और यहाँ के होस्ट मिनिस्टर यूजी बढ़मा, अब जब बढ़मा ही हो तो फिर दूसरे भगवान की जरूरत कहां। मैं इनको भी और हमारे विभाग की एग्रेसिव सेक्रेटरी जो मोहन यादव जी
सेक्रेटरी ने कहा कि सर आप हम इनके लोन, आपने लोन लिया है। मुझे बात भी सही है, जिस कैडर की होती है, कैडर प्राथमिकता होता है, तो मध्य प्रदेश कैडर की हैं नीलम शमी राव जी, रोहित कंसल जी जो हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं, राजेंद्र जी जो इकोनॉमी एडवाइजर हैं, हमारे सभी राज्यों के मंत्री मानवर गणेश जोशी जी उत्तराखंड, विकास वर्मा जी त्रिपुरा, बहन शाल होंतोनो जी नागालैंड, प्रदीप बाल सामंता जी उड़ीसा, नायतो हुकुम जी अरुणाचल, संजय सावरकरे जी हमारे मित्र महाराष्ट्र, बलवंत सिंह गुजरात, गजेंद्र यादव जी जिनके कंधे पर बहुत बड़ा भार दिया गया है, छत्तीसगढ़, और उत्तर प्रदेश के हमारे मित्र राकेश सचान जी, और हमारी टीम की दोनों डीसी, निफ्ट की डीजी और हमारे पूरे डिपार्टमेंट में फाइबर को देखने वाली पद्मिनी सिंगला जी, अमृत मैम जी और बीना मैम जी जो दोनों डीसी हैं, हमारे सहयोगी जोगेंद्र जी, और सभी राज्यों से आए हुए अधिकारीगण, सचिवगण, और खास करके आसाम। आपने चाहे हमारी सेक्रेटरी के वक्तव्य को सुना, चाहे एडिशनल सेक्रेटरी द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया, और हमारे एमओएस के द्वारा स्पीच में, कि हम यहां क्यों आए हैं। एक तो मैं गुवाहाटी को देवभूमि है, माता कामाख्या ये देवभूमि है, सबसे कहूंगा दर्शन करके जाएं। असम सरकार और पवित्रा जी ने सबके दर्शन की व्यवस्था रखा है, लेकिन आज एग्रीकल्चर के बाद सबसे बड़ा रोजगार अगर देने वाला कोई सेक्टर है वो टेक्सटाइल है। और नॉर्थ ईस्ट स्पेशली मैं इस धरती पर कार्यक्रम कर रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री नॉर्थ ईस्ट को कहते हैं अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी, और ये अष्टलक्ष्मी की ताकत है टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल में ताकत है हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट, और जिसकी शुरुआत एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नए सोच के साथ हम गुवाहाटी से शुरू कर रहे हैं। लेकिन आज आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट को जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने इनके विकास कब को होना था, लेकिन पता नहीं पूर्व की सरकारों से कौन सी नजरअंदाज हुआ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने
आपको जान करके खुशी होगी कि आजादी के 77 साल बाद देश के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने 80 टाइम्स 80 बार से अधिक इस नॉर्थ ईस्ट में आने का काम किया। और ये केवल आए नहीं, और मंत्री परिषद के सदस्य कम से, जो मेरे पास आंकड़े हैं, वो 800 टाइम्स से मोर देन, 800 टाइम्स से मोर देन ये 11 साल में नरेंद्र मोदी के मंत्रियों ने विजिट किया है नॉर्थ ईस्ट को। केवल विजिट नहीं किया है, समग्र विकास की प्राथमिकता दी है। अटल बिहारी वाजपेयी ने डोनर मंत्रालय की सोच रखा था, और नरेंद्र मोदी जी ने केवल